اب اس کی شرح کرتے بعض محدثین نے فرمایا میں ہی جزا کا مطلب کیا ہوں، یعنی روزے داروں کو اللہ کا دیدار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پیج پر دیکھیں تو فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کریں، اور فیس بک پیج MOR لطیفی نیٹ ورک اس کو بھی ضرور فالو کریں، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے پاس اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی سنیں، ان کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ تعالی وسلم کس قدر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں حضرت سید امین القادری مدد اللہ النورانی کی زبانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی ماہ رمضان شریف آنے والا ہوتا تو صحابہ کرام کو ماہ رمضان شریف کی عظمت بتاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ماہ رمضان کی عظمت پہ خطبہ دیتے اور بتاتے لوگوں ماہ رمضان کیا ہے، بلکہ آئیے حضور علیہ السلام کے ان خطبات کا حصہ، ان احادیث کا حصہ ہم بھی سن کے ایمان تازہ کریں۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب صدقہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اکبر یہ کون سا مہینہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر لوگوں کو ماہ رمضان کی عظمت پتہ چل جائے تو لوگ تمنا کریں کہ پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے، پورا سال رمضان شریف ہو جائے۔ یہ کیا مہینہ ہے جب روزے دار سوتا ہے تو بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، روزے دار کے لیے اس کا بستر مغفرت کی دعا کرتا ہے، جب روزے دار کپڑے پہنتا ہے کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب روزے دار سحری کے لیے اٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات روزے کی فضیلت میں کیا ہے؟ دیکھو، حج کرو تو جنت ملے، نماز پڑھو تو جنت ملے، زکات دو تو جنت ملے، ساری عبادتوں پہ جنت کی بشارت ہے، لیکن روزے میں انفرادیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور فرمائے کہاں جنت اور کہاں خالی کے جنت، توجہ فرمائے روزے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب اس کی شرح کرتے بعض محدثین نے فرمایا میں ہی جزا کا مطلب کیا ہوں، یعنی روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کیا چیز ہے، تو آپ غور فرمائیں جس رسول کے دیدار کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی ایک جھلک دکھا دے، ان کا جلوہ دکھا دے، خواب میں ان کا جلوہ دکھا دے۔ اندازہ فرمائے جب مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا یہ عالم ہے تو ان کے بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کس طرح نصیب ہوگا یہ بات تو نہیں بتائی جا سکتی، کیفیت تو نہیں بتائی جا سکتی، ایمان ہے جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ روزے داروں کو دیدار الہی نصیب ہوگا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزے داروں کو دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی لقائے رحمان کے وقت، رحمان سے ملاقات کے وقت۔ اس لیے آج کل روزہ داروں کے اندر کچھ کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میں بیمار ہوں اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ لنگڑے لولے بہانے شیطانی وسوسے ہیں۔ یاد رکھنا روزے سے بیماری بڑھتی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ تو صحت لاتا ہے، روزے سے کبھی بیماری نہیں آتی۔ نیت اچھی کرو، بہانے مت تلاش کرو، اور یہ بھی سن لو اگر جان بوجھ کر کسی نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑ دیا پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے
फजीलत को नहीं पा सकते। बेशक। इसलिए इस महीने की कद्र कीजिए। जैसे इज्जत वाले मेहमान की कद्र की जाती है, वैसे इस माह मुबारक की कद्र कीजिए। रोजे को तर्क मत कीजिए, रोजे को छोड़िए मत। अपने बच्चे को रोजे का आदी बनाइए, खुद भी रोजे की पाबंदी कीजिए। अगर काम धाम में कुछ कमी करना पड़े रोजे की वजह से तो कर दीजिए, लेकिन याद रखिए और अच्छी तरह याद रखिए कि रोजे को तर्क मत कीजिए। इसलिए कि इस मुबारक महीने में अल्लाह मोमिनों की रोजी बढ़ा देता है, अल्लाह रिस्क बढ़ा देता है। यहाँ अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर, मालदार से मालदार आदमी साल भर वो गिज़ाएं नहीं खा पाता जो रोजाना गरीब भी अपने दस्तरखान पे खा लिया करता है। आप गौर फरमाए, आमदनी तो बजाहिर उतनी ही रहती है, सैलरी तो उतनी ही रहती है, फिर आप मुझे बताएं रमजान शरीफ के अंदर दस्तरखान वसी होता है कि नहीं होता, कुशादा होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ, कोई करोड़पति आदमी भी होगा जो रात में 4 बजे उठ करके इतने एहतिमाम से खाना खाता होगा? आप मुझे बताएं, कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दे कि जो रमजान शरीफ के अलावा रात में 4 बजे उठकर ऐसा ताजा तरीन खाना बना करके रोजाना खाता हो। लेकिन अल्लाह अकबर, जो लोगों के सोने का टाइम है, अल्लाह उस वक्त मुसलमान को खाना खिला रहा है सहरी के नाम पर, अंदाजा फरमाए। और इंसान मस्त खाना भी खा रहा है, फिर इफ्तार भी शाम से कर रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों, सैलरी तो उतनी ही है, आमदनी तो उतनी है, ये रात के 4 बजे क्यों खिलाया जा रहा है? गुरूब आफ्ताब के वक्त बिल्कुल टाइम क्यों खिलाया जा रहा है? अल्लाह अकबर, साल भर दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो रोजाना बिल्कुल मगरिब के वक्त दस्तरखान पर आकर बैठ जाए। किसी का खाना 8 बजे होता है, किसी का 12 बजे होता है, किसी का रात में 2 बजे होता है। अल्लाह अकबर, कोई कब खाता है, कोई कब खाता है। मगर रमजान शरीफ के अंदर अल्लाह अकबर, सुबह सादिक से पहले सहरी हो रही है, गुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तार हो रहा है और टाइम पर बिल्कुल हो रहा है। गोया की कुदरत बता रही है, बंदे 1 महीना पूरा मेरे फरमान का ताबे हो गया तो देख मैं तुझ पर कैसी नवाजिश कर रहा हूं। अगर पूरी जिंदगी हो जाए फिर मैं तुझ पर कैसी नवाजिश बात करूं। बुजुर्गों ने फरमाया, एक नेकी की अगर 70 दर्जात मिलते हैं, एक नेकी करने पे 70 नेकियां मिलती है, तो रमजान शरीफ में फिर 1 गुना करने पर 70 गुना भी मिल सकता है। ये जो मोबाइल के अंदर लोग रमजान शरीफ में भी गेम खेलते हैं, फिल्में देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, रोजे में लोगों को ऐसा लगता है चलो फिल्म ना देखें, गेम तो खेल सकते हैं। हमने कहा क्यों खेल सकते हैं? इसलिए कि इस्लाम में तज़ी औकात यानी वक्त को जाय करना यह भी गुनाह है। रोजे में लोग दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते? रोजे में लोग तिलावत कुरान क्यों नहीं करते? गेम लेके क्यों बैठते? और फिर वो भी गुरूब आफ्ताब के वक्त रिवायतों में आता है कि जब इफ्तार का वक्त आता है तो अल्लाह अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदों मांगो, क्या मांगते हो मैं तुम्हें अता करूं। जब अल्लाह फरमाता है क्या मांगते हो मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, तो उस वक्त बंदा गेम खेल रहा होता है। रोजे से भी होता है लेकिन गेम खेल रहा है, फेसबुक पर होता है, यूट्यूब पर होता है। सोचो तो सही, अल्लाह फरमा रहा है मांग, क्या मांगता है? क्यों नहीं मांगते? सबसे मांगने वालों रब से क्यों नहीं मांगते? सबके सामने गिड़गिड़ाने वालों रब की बारगाह में क्यों नहीं गिड़गिड़ाते? और याद रखना, दुनिया का इंसान वादा करके खिलाफ कर सकता है, मगर मेरे अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, मेरा अल्लाह वादे के कभी खिलाफ नहीं करता, वो अपने वादे को मुकम्मल करता है। इसलिए कि वो वादा पूरा ना करे तो कौन? वो सच्चा है। इरशाद फरमाता है, कुल सदकल्लाह, ए महबूब फरमा दो कि अल्लाह सच्चा है, वो अपना वादा कभी खिलाफ नहीं करता। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो गिड़गिड़ाए, सहरी में भी गिड़गिड़ाए, बल्कि सहरी के लिए उठते हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी उठ जाए, वुजू करे, तहज्जुद पढ़ ले, दुआ कर ले। इसलिए कि जब रात का आखिरी पहर होता है तो भी अल्लाह बंदों से कहता है कोई रोजी मांगने वाला, मैं उसको रोजी अता करूं?
है कोई औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद अता करूं। है कोई मुश्किलों से निजात मांगने वाला, मैं उसको मुश्किलों से निजात अता करूं। मुसलमानों, हम अपने मसाइल के अंदर झुंझ रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल का हल लोगों के दरवाजों पे नहीं है, न सियासी लीडरों के दरवाजों पर है, न माहिरीन माशियात के दरवाजों पर है, न जो समाज के कारकुनों के दरवाजे पर है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पर था और आज भी अल्लाह की बारगाह में है। खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो, हर मसले का हल मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए माह रमजान शरीफ के एक एक लम्हे की कद्र कीजिए, इसलिए कि जब रमजान शरीफ आता था तो सहाबे किराम अपने बिस्तर बांध देते। मैंने जुमा की नमाज में लोगों को ये बात बताई कि सहाबे किराम रमजानुल मुबारक में अपने बिस्तर बांध कर रख देते थे। बिस्तर क्यों बांधते थे? सोएंगे नहीं, इतना ही सोएंगे जितना इंसान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी नहीं सोना, हर वक्त इबादत करना। इसलिए कि जो रमजान शरीफ की कद्र करे फिर वो कद्र करे, जो नाकदरी करे फिर उसके लिए क्या, वो तो सिवाय हाथ मलने। बल्कि एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूं, जो यहां सुन रहे, कोशिश कीजिए कि रमजान मुबारक तक अगर हम पहुंच गए, अभी तो पहुंचना भी एक बात है, इसलिए कि अभी रोजे के आगाज में और चांद के नजर आने में कुछ वक्त है। यहां तो पल की खबर नहीं है, कल की बात कौन है, पता नहीं कितने खुश नसीब पहुंच सकेंगे रमजानुल मुबारक तक, ये एक अलग मसला है। और अगर अल्लाह पहुंचा दे, और दुआ करे अल्लाह पहुंचा। आपको रमजान शरीफ की अहमियत का अंदाजा इस बात से होना चाहिए, रजब से अल्लाह के रसूल दुआ करते थे, ए अल्लाह हमारे रजब और हमारे शाबान में बरकत दे और हमें रमजान शरीफ पहुंचा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम 3 महीने लगातार रमजानुल मुबारक में पहुंचने की दुआ फरमा रहे, वो के 2 महीने रजब और शाबान में, और रमजान शरीफ का 3रा महीना हुजूर दुआ करते हैं हमें तालीम उम्मत के लिए हमें रमजान शरीफ तक पहुंचा दे। तो अगर अल्लाह किसी खुश नसीब को रमजान शरीफ तक पहुंचा दे तो वो तन्हाई में बैठकर ये सोचे कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजानुल मुबारक, इस तसव्वुर के साथ ये आने वाला रमजान शरीफ हमें गुजारना है। जाहिर सी बात है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पिछले साल रमजान शरीफ में थे, इस साल नहीं है, और इस रमजान शरीफ में जो रहेंगे हो सकता है कि वो आइंदा न रहे। रमजानुल मुबारक तो आता जाता रहेगा, खुदा के कई अजीम महीना मेहमान बन करके आता जाता रहेगा, ये अपनी बरकतें लुटाता रहेगा, ये मौसम बहार आता रहेगा, ये नेकियों का महीना आता रहेगा, ये बरकतों का, रहमतों का, मग़फ़िरत का और जहन्नम से आजादी का ये मुबारक महीना आता जाता रहेगा, मगर कौन हम में से रहेगा, ये बड़ा मसला है। इसलिए अल्लाह के बंदो, ये रमजानुल मुबारक को हम सब ये सोच करके गुजारे कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी माह रमजान हो, इसमें तहज्जुद भी पढ़ा करें, कम से कम एक कुरान मुकद्दस खत्म करने की कोशिश करें। बल्कि जो लोग 4-4, 5-5 खत्म करते हैं, उनसे इस साल मेरी गुजारिश है 4-5 खत्म करने की बजाय एक ही खत्म करें, या 15 ही पारे पढ़े या 10 ही पारे पढ़े, लेकिन तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ से आप कुरान मुकद्दस पढ़ने की कोशिश करें, और खजानुल इरफान शरीफ में उसकी तफसीर को भी आप देख लें, ताकि पता तो चले कि कुरान हमसे कहता क्या है, कुरान का हमसे मुतालबा क्या है। ये तोते की तरह पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये किताब समझकर पढ़ने वाली किताब है, ये दिलो दिमाग में उतारने वाली किताब है, ये जिंदगी में शामिल करने वाली किताब है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सबकी किताबें पढ़ के देखी है, रब की किताब भी पढ़ करके देखो, फिर उसकी लज्जत को महसूस करो, उसको अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करो। बयान हुजूर सैयद अमीरुल कादरी ने किया रमज़ान के ताल्लुक़ से, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन पूरे महीने सोने से बाज रहते हैं, यानी अपने बिस्तर को बांध देते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान तक पहुँचने के लिए
2 مہینے رجب اور شعبان میں بے انتہائی دعائیں کرتے ہیں، اور رمضان کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اس میں بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، مگر یہ امت اتنی ناکارہ ہو چکی ہے کہ اللہ کے حبیب تو رات اور رات روئیں، مگر یہ ناکارہ امت اپنی موبائلوں میں ناجائز خرافاتوں سے باز نہیں آتی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔